Hello friends, so today in this video we are going to discuss a very important quiz for the GIB exams and the very important topic, that is legal LRPB, right? So here is the 10 questions and all those quizzes are happening in the very special group, that's the paid group, and you can pay some amount to be the part of that group, right? So here the first question is deliver of goods by one person to another person for some purpose. जब हम डिलीवरी करते हैं कुछ भी गुड्स कोई एक आदमी से दूसरे आदमी तक कोई भी पर्पस के लिए, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपोथिकेशन, सेकंड ऑप्शन इज मॉर्गेज, थर्ड प्लेस, नेक्स्ट वन इज बेलमेंट. द करेक्ट आंसर इज बेलमेंट, राइट. सो हियर वी कैन डिस्कस हाइपोथिकेशन जो होता है हमारा होता है, हम पहले क्विज कर लेते हैं उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, राइट. सो हियर ए कस्टमर हैज इशूड ए चेक डेट ऑफ विच इज येट टू कम, सच ए चेक इज कॉल्ड व्हाट. यहाँ पर कीवर्ड क्या है? विच इज येट टू कम. सो येट टू कम के लिए हमें पता है द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है हमारा स्टेल चेक, पोस्ट डेटेड चेक, क्रॉस चेक एंड स्टोलन चेक, एंड द करेक्ट आंसर इज पोस्ट डेटेड चेक, राइट. सो इसमें जो पोस्ट डेटेड है वो है हमारा येट टू कम, और एक जो आ गया है ऑलरेडी, मतलब क्रॉस कर गया है, उसको हम बोलते हैं एंटी डेटेड चेक, राइट. सो स्टेल चेक वी नो, दस we'll discuss in more in the videos. So here we'll discuss about the quizzes. So here is timer is given for 1 minute or something, right? So this quiz will be more helpful in your practice. So next question is whether movable securities in possession of the bank can be sold by the bank without intervention of court. जो भी मूवेबल सिक्योरिटी होता है बैंक के पास, इन पोजीशन ऑफ द बैंक, उस सिक्योरिटी के हिसाब से कैन बी सोल्ड बाय द बैंक, बैंक उसे बेच सकता है, उसको सेल कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट. कैसे? अगर ये वाला हो सकता है तो देन व्हिच एज पर द व्हिच लॉ. इसमें है फर्स्ट ऑप्शन है नो, द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू सेल द सिक्योरिटी. यस, बैंक कैन सेल प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट 1872. Yes, as per the Survey Act has made provision to that effect. Till that account is not declared NPA by the bank. So answer is yes, but which is as per the Contract Act, right? That is 1872. So remember this. So correct answer is option number 2. So next question is where a customer by a letter has advised the bank directing the bank not to honor or pay a particular check, directing the bank not to honor or buy a particular check, such a letter is called what? Where a customer by a letter has advised the bank directing the bank not to honor or pay a particular check, such a letter is called, which is the correct answer is letter of as the correct answer. You can check yourself. स्टॉप पेमेंट लेटर, राइट. जब भी कोई कस्टमर कोई लेटर देता है उसको स्टॉप पेमेंट कहता है चेक को, राइट. सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन विल कम ऑटोमेटिकली आफ्टर द टाइम आउट. सो नेक्स्ट टाइम हमारा क्वेश्चन व्हेन ए बैंक पेज ए चेक, when a bank pays a check according to the apparent tenor in good faith and without having reasons to doubt the bona fide of the presenter, such payment is first option A wrong payment, late payment, future. First option future payment or payment in due course. The correct answer is payment in ड्यू कोर्स. हाउ? जब कोई भी बैंक का कोई भी एक चेक को ऑनर करता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होता है, इन गुड फेथ. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज पेमेंट इन ड्यू कोर्स, बिकॉज वी आर फॉलोइंग वट एवर द रेगुलेशंस फॉर द चेक पास, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन
you can see the timer. So it will make you the habitual for the attempting the exam environment, right? And in our group we are also making some timing for all the topics. So next question है हमारा, इसको आप देख सकते हैं, ए पार्टनरशिप deed usually contain the particular related to name of the firm of the and the partner, first of nature of the business and duration of the firm, capital contribution, profit loss sharing ratio, other and agreed. So all the three answers are correct. So here is the right answer, these are the options. Correct answer is all the three, right? So like that you can check your timing also and make your speed also, right? So the next question will automatically come. So next question is, an incoming partner which has been validly admitted in the firm. जो कोई एक इनकमिंग, जो एक न्यू पार्टनर आता है, हु हैज़ बीन वैलिडली एडमिटेड एज पर द मतलब लॉ एंड व्हाट एवर देयर रूल्स रेगुलेशन, उसके हिसाब से ऐड हुआ है, दैट इज liable for the first debts of the firm, not liable for the past debts of the firm, liable for the debts of the firm incurred after his admission. जब कोई न्यू पार्टनर आता है एंड सब कुछ को मतलब जितना उनका है कंडीशंस उसको वैलिड करने के बाद, मतलब सेटिस्फाई करने के बाद, उस केस में जितना भी फास्ट डेट होगा उस फॉर्म का और जो कुछ उसके आने के बाद होगा वो सब के लिए लायबल होगा, राइट? नॉट लायबल, दिस इज द नॉट. सो ऑप्शन नंबर आई एंड 3 which one? Option number B is the right answer. So you have to answer within that time period, right? So non-resident who enter into any of the prescribed transactions are required to furnish which document non-resident should furnish for the prescribed transaction? Form 60 हमारा क्या होता है, जो प्यान नहीं होता उनके लिए. सो कॉपी ऑफ वीसा, जो हमारा इंडियन कभी बाहर जाते हैं तो उनके लिए वीसा चाहिए. सो कॉपी ऑफ पासपोर्ट. सो एंड फॉर्म 61 ऐसे कुछ नहीं होता है. सो फॉर्म से उनको कॉपी ऑफ पासपोर्ट सबमिट करना होगा, राइट? सो इसके साथ हम ऐसे आप इजीली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड हियर नॉन रेसिडेंट्स, राइट? जब कोई भी उनको चाहिए, और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप वो वाला देख सकते हैं. उनका अगर कोई अकाउंट ओपन करता है तो नॉन रेसिडेंट को उनका KYC चाहिए, और उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस, ट्रांजैक्शन लिमिट भी रहता है, राइट? सो उसके लिए जो हमारा अकाउंट्स रहता है, नोस्ट्रो वोस्ट्रो ऐसे accounts we can see. So next question is question number 9. Total number question is 10. So partners equity is affected. Partners equity is affected due to, जो पार्टनर का इक्विटी होता है वो अफेक्टेड होता है. फॉर व्हाट रीजन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, time limits of the death of a partner, limits the time within which he may thus enforce his right. So actually the question is till now, right? So partner is affected due to retirement, admission of a partner and death of a partner. Answer is all the above, राइट? जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो उनका इफेक्टेड रहता है, राइट? कोई रिटायर भी हो जाता है उस टाइम भी होता है, और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर उस केस में पार्टनर इक्विटी भी इफेक्ट होता है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम. कोई भी एक प्रपोजल वो रिवोक हम कर सकते हैं एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, बिफोर द रिजेक्शन ऑफ इट्स कम्युनिकेशन. कोई भी एक्सेप्ट होने से पहले या रिजेक्शन होने से पहले. सो करेक्ट आंसर हमारा है कुछ ऑप्शन से हमारा आई और 2I आर बोथ, एंड आंसर इज करेक्ट आंसर इज आई, दैट इज बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस.
उससे पहले हम कोई प्रपोजल को उसको रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। पहले एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद मतलब देखेगा, उसके बाद रिजेक्ट मीन्स तो आपका वही हो गया कैंसिलेशन, राइट। सो ऐसा हुआ। जब आप फुल्ली अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आप कितना अटेम्प्ट किए हैं, क्या किए हैं, राइट। सो लाइक दिस यू कैन अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्विजेस इन आवर special group, and more and more quizzes in our special group, and here also you will get some more things like special guidance. Whatever doubts you can ask our admins, right, and whatever the conceptual doubts you can also clarify from our admins with the personal talk, right. So it's the thing which is utilized by the admins. And one more thing, here we have added some nominal amount which is paid to them who are because the admins are giving the questions, and there are some who are typing all the questions and who are making, so for them we need to pay them. So you can join this course. And one more thing, the JIB, to pass the JIB exam, and all our admins, they have already cleared the JIB as well as CIB exams in their first attempts itself. So they are well experienced, as well as they are also working professionals, and they have the main important thing, they have the experience of the latest pattern. And as we know, for the JIB, to pass the JIB, as we have very less period of time, that is 1 week for the first PPB, then simultaneously then accounting, and next one is legal, and accounting legal are Saturday and Sunday, that consecutively. So this time ये जो है ना आपका लीगल के लिए पकड़ लीजिए, लीगल एंड अकाउंटिंग, इसके बीच में आपका बहुत ज़्यादा कम टाइम है। अगर जो अभी प्रिपेयर नहीं किए हैं कम्प्लीटली, क्योंकि बैंकर के हिसाब से तो काम रहता है, हम सोचते टाइम निकल जाता है, तो उनके पास टाइम ही नहीं है। आपके पास एक वीक बचा है जिसमें आपको जो अभी भी प्रिपरेशन नहीं किए उनको डरने का कोई ज़रूरत नहीं। आपको बस अप्रोच डालना होगा, कौन सा टॉपिक चूज करना होगा, एंड आपको पूरा होल सिलेबस को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो कुछ फोकस करने से आपका जो परसेंटेज ऑफ पास है वो विल बी एटलीस्ट मोर दैन 50% और 60%। ऐसे भी आपको चाहिए बस 50% मैक्सिमम। दिस इज आपको तो 40, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड सब पेपर को आप एक ही साथ क्लियर कर रहे हैं तो आपको 45 करके आप रेज करके टोटल 150। सो आप 50-50 पकड़ के जाइए। अगर आप इतना कर रख लेते हैं आप इजीली कवर कर लेंगे। सो एक अच्छा वाला अपॉर्चुनिटी है, यू कैन इंटरेक्ट विथ एडम्स at any time. So we'll also provide some more discussion videos and the strategy how to deal with all those things. So till that time, thanks for watching the videos and keep preparing. All the best for your exams. Thank you. और हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर था डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, उसको क्या कहते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था हाइपोथिकेशन, उसका मीनिंग था कि हाइपोथिकेशन क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ देते हैं उस केस में हम स्टॉक्स को, जो हमारा स्टॉक्स रहता है उसको हम हाइपोथिकेट करते हैं। दैट मीन्स उसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मूवेबल स्टॉक्स होता है हम उसको हाइपोथिकेट करते हैं। सो एक सिक्योरिटी पोजीशन लेने का वो टर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्गेज, वैसे ही है जैसे हमारा कोई हाउसिंग लोन होता है उसके उसमें हम हाउस को मॉर्गेज रखते हैं। दैट मीन्स कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रहता है वो क्या होता है, मॉर्गेज रहता है। दैट मीन्स इट्स गिवन एज ए सिक्योरिटी टू द बैंक। सो प्लेज क्या होता है, जो गोल्ड लोन हम करते हैं, जो गोल्ड हमारे पास रहता है उस टर्म को हम बोलते हैं प्लेस्ड। दैट इज सो वो एक हमारा सिक्योरिटी हमारे पास रहता है एंड विल पे द अमाउंट टू द कस्टमर, राइट। सो ये सब हमारा सिक्योरिटी में गया, राइट। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे आपको एग्जाम में आंसर करना है। ये तीनों सिक्योरिटी हो गया, तो नेक्स्ट क्या बचा, बेलमेंट। सो डिलीवर ये वाला का आंसर क्या होगा, बेलमेंट, राइट। सो आपको ऐसे ही जल्दी से ही इसको पकड़ लेना है, आपको इतना कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, बस मैं इतने बोल दिया कि आपको इसका मीनिंग पता चले, ठीक है। बस ये तीनों देखो सिक्योरिटी टर्म में, सो बचा आपका बेलमेंट।
So next question is, when a customer has issued a check that of which is yet to come, such a check is called what? So जो भी यहाँ पर देखिए yet to come, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा पोस्ट डेटेड चेक. सो आपको दो इंपॉर्टेंट चेक याद रखना है, पोस्ट डेटेड चेक एंड एंटी डेटेड चेक, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम में आते हैं. पोस्ट डेटेड चेक जो होता है वो आने वाला है, एंड एंटी डेटेड जो होता है वो आ गया है. जैसे आज तारीख है 2 तारीख, सो जो हम अगर चेक हमारा 4 तारीख का है तो आज के डेट में 4 तारीख का चेक हो जाएगा पोस्ट डेटेड. और आज 2 तारीख है और चेक था 30, जो देन आज 2 तारीख के लिए ये 30 वाला हो जाएगा एंटी डेटेड चेक, राइट. और स्टेल चेक जो ऑलरेडी 3 मंथ क्रॉस हो गया है, राइट, तो उसको हम टेस्टल चेक बोलते हैं. तो स्टोलन जो चोरी हो गया, ऑल दैट. क्रॉस चेक मीन्स अगर कोई कस्टमर को इसको वाला मतलब कोई कस्टमर चेक में ये वाला क्रॉस कर दिया है, दैट मीन्स इट इज़ पेबल टू द अकाउंट ओनली. सो लाइक दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो आपका लीगल सब्जेक्ट होता है ना, ये कंसेप्चुअल होता है. इसमें आपको प्रैक्टिकली इसको रिलेट करने पर ही आप आंसर इजीली पा सकते हैं. देखिए वेदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वेदर मूवेबल सिक्योरिटीज in possession of the bank can be sold by the bank without intervention of the court. Obviously. So आपका यहाँ पर देखिए जो सिक्योरिटीज़ है, तो बैंक को तो सिक्योरिटी मिल गया है, तो उसको बेचने के लिए इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट ज़रूरत नहीं है. और इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट कब ज़रूरत होगा? जो कोई लीगल इशू रहेगा. एंड कोई एक होता है जब कोई कोर्ट ऑर्डर देता है, उसको हम बोलते हैं गार्निशिंग ऑर्डर, राइट. सो ये वाला ऑर्डर नहीं है. सो ये तो बहुत ज़्यादा डीपली हो गया, पर यहाँ पर सिंपली है, अगर बैंक को सिक्योरिटी है, बैंक को कोर्ट का ऑर्डर नहीं चाहिए, अगर कोई लीगल इशू नहीं है वो उसको बेच सकता है. सो ये किस एक्ट के हिसाब से? डायरेक्टली यस. एंड इसको हम कंट्रैक्ट एक्ट 1872. कभी कभी होता है ना, आपको यही वाला ऑप्शन मिलेगा और नेक्स्ट हो जाएगा 1873. तो आपको दोनों सही लगेगा कि यस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, पर यहाँ पर 1872 73 है. सो ये छोटा छोटा जो ईयर है लीगल में एक्ट के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. और यहाँ पर भी है यस, एज पर द सरफेस एक्ट. सो जो हमारा सरफेस होता है, ये हमारे सिक्योरिटाइजेशन के लिए होता है, राइट. सो कॉन्ट्रैक्ट के केस में बैंक के साथ जो कस्टमर है ना, क्या हमारा जो डॉक्यूमेंट्स बनता है लोन के केस में, कोई भी सिक्योरिटी हम लेते हैं, तो कस्टमर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है. उस डॉक्यूमेंट में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है, अगर कस्टमर कोई पेमेंट मतलब डिफ़ॉल्ट रहता है, तो उस केस में बैंक कैन सेल दैट गुड विथ द प्रायर नोटिस टू द कस्टमर. और प्रायर नोटिस के लिए कुछ टाइम होता है, वो आपका बहुत डीपली होता है. बस रिमेंबर दिस टाइप्स ऑफ टर्म्स ओनली, राइट. सो नेक्स्ट जो हमारा होता है, वेयर ए कस्टमर बाय ए लेटर, where a customer by a letter has advised the bank directing the banker not to honor pay a particular check, सच ए लेटर इज कॉल्ड. जब कोई चेक मतलब कस्टमर के पास चेक मतलब बैंकर के पास चेक चला गया है, ठीक है, एंड उसके बाद कस्टमर लेटर देता है कि उस चेक को पास नहीं करने के लिए, उस लेटर को हम क्या बोलते हैं? तो चारों ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, बहुत इजी है. लेटर ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी क्या होता है? जब कोई किसी को हम अथॉरिटी देते हैं, मतलब कोई किसी को हम कोई भी काम करने के लिए अथॉरिटी देते हैं, तो मेरे ऑन बिहाफ मेरे काम करो, ठीक है. सो लेटर ऑफ क्रेडिट जो हमारा होता है, एक गारंटी, बैंक गारंटी टाइप का, LC, वो अलग बात होता है. एंड लेटर ऑफ कंटिन्यूटी. लेटर ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है कि ये वाला काम को कंटिन्यू करने के लिए हम एक लेटर देते हैं. और सो ये देखिए तीनों अलग अलग हो गए. और एक है स्टॉप पेमेंट लेटर. सो यहाँ पर जो हमारा की वर्ड है, यू कैन सी हियर, नॉट टू ऑनर और पे. नॉट मतलब क्या होता है, इसको भी स्टॉप द पे, स्टॉप पेमेंट. सो दैट इज स्टॉप पेमेंट लेटर. यू कैन डायरेक्टली टिक द आंसर, राइट. जो लीगल होता है ना, बहुत ईजी रहता है. अभी हम लोग जो बैंक में ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गए हैं ना, 1 साल भी काम किए हैं, उनके लिए बहुत ईजी रहता है, राइट. सो बस आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो उसको अपने काम के साथ रिलेट करिए, इट विल बी वेरी ईजी, राइट. सो ये वाला आपको हेल्प ना हमारा ग्रुप में मिल सकता है. यहाँ पर हमारा एडमिन्स, ये जो छोटा छोटा चीज़ है, कुछ होता है आपका अप्रोच, उसी को आपका एनहांस होने में हेल्प करेगा, राइट. सो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप एज वेल. सो इसके लिए हमारा जो ग्रुप का लिंक है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो यू कैन फॉलो दैट एंड ज्वाइन द ग्रुप, राइट. एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर एडमिन टू ज्वाइन दिस स्पेशल पेड ग्रुप, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हेन ए बैंक पेज ए चेक अकॉर्डिंग टू द अपरेंट in good faith without having reasons to doubt or
द बोनाफाइड ऑफ द प्रेजेंटर। जब कोई चेक हमारे पास बैंकर के पास प्रेजेंट होता है उसमें सब कुछ ठीक होता है एज पर द लॉ, राइट। जो हमारा हमें जो दिखाई देता है ना, हम तो उसी हिसाब से, हम तो वो भगवान नहीं है। तो हम अगर गुड, जो कोई कस्टमर हमें प्रेजेंट करता है वी हैव टू, हम फेथ के साथ ही उसको देते हैं, ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक है, कोई अल्टरेशन नहीं है, डेट को छोड़ के, डेट अगर अल्टरेशन रहता है, और ये छोटा छोटा देखिए पॉइंट, अगर डेट अल्टरेशन ओनली अलाउड है एज पर द RBI, राइट। सो उसमें भी कस्टमर का ये चाहिए कि कोई उसका कंप्लीट सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। करेंट अकाउंट में केस में अगर उसका स्टाम्प होता है तो स्टाम्प भी चाहिए और साइन भी चाहिए। तो अगर कोई अदर अल्टरेशन नहीं है, सो हमें कोई डाउट भी नहीं है, हम पास कर देते हैं, देन सच पेमेंट को क्या बोलते हैं? तो उस पेमेंट को रॉन्ग पेमेंट, ऑब्वियसली अब हम तो पेमेंट कर दिए हैं तो रॉन्ग पेमेंट कैसे? लेट पेमेंट नहीं, फ्यूचर पेमेंट नहीं, तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सो ये वाला जो टर्म होता है ना, ड्यू कोर्स, उसी का मीनिंग है यही जो आपका टेनर, इन गुड फेथ विदाउट हैविंग रीजंस टू डाउट, इसी का मीनिंग है इन गुड कोर्स, राइट, इन ड्यू कोर्स। सो छोटा छोटा पॉइंट्स है, यू कैन रिमेंबर, एंड दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लीगल। सो ए पार्टनरशिप डीड, एक जो पार्टनरशिप डीड होता है, राइट। सो इस ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस ये वाला है, ए पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन्स द पर्टिकुलर। एक जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें क्या क्या होता है? नेम ऑफ द फर्म, आई एम पार्टनर्स ऑब्वियसली, एंड नेम ऑफ द बिजनेस, वो पार्टनर जो फॉर्म में कौन सा वाला बिजनेस होता है, एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, मतलब कितने साल से एस्टेब्लिश हुआ है, लाइक दैट, एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कौन कौन कितना, कौन सा पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ द रेशियो एंड अदर एग्रीड टर्म्स। एग्रीड टर्म्स मीन्स जो हर मतलब इट्स एक्सेप्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स। सो हियर ऑल आर included. So option number 3 means all are the answer, right? Correct answer. You can easily understand this. Legal paper is very easy, but you need to analyze the questions with the options, right? So next one is an incoming partner. An incoming partner who has been validly admitted in the वैलिड, कोई इनकमिंग मीन्स कोई एक न्यू पार्टनर है जिसको वैलिडली, मतलब जितना उनका कंडीशंस रूल्स है उसको सेटिस्फाई करके वो एडमिटेड हुआ है, वो क्या होता है? लायबल फॉर द पास्ट डेब्ट्स। लायबल फॉर द मतलब जैसे वो आज के डेट में आया है तो कोई फॉर्म का जो भी डेब्ट होता है लायबल होता है, लायबल फॉर द फर्स्ट डेब्ट्स ऑफ द फॉर्म, नॉट लायबल फॉर द फर्स्ट डेट्स, एंड लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फॉर्म इनकरिंग आफ्टर हिज एडमिशन। वो आने के बाद तो जो डेब्ट्स होगा उसके लिए वो लायबल रहेगा, एंड जो कि अभी वो जितना वैलिडेट एडमिटेड इन द वैलिडली आज पर द जितना कंडीशन सर्टिफिकेट का आया है, जो फॉर्म में तो पार्ट हो गया जो पार्टनर है, तो फॉर्म का जो होता है ना, जो भी डेब्ट्स रहता है उसके लिए भी वो लायबल रहता है, राइट। इट्स नॉट ए सेपरेट एंटिटी, he is liable for that. So यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 1 and ऑप्शन नंबर 3 is the answer. So here is the ऑप्शन नंबर I and 3 is the answer, right? So ऐसे ही आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको अभी हमारे पास ना टाइम नहीं बचा है, आपको अभी 1 वीक बचा है, राइट। सो आप ये मत सोचिए कि हो नहीं पाएगा, ये जो इतना टाइम है ना इसी को अपना जितने भी रिवाइज कर सकते हैं करिए शॉर्ट नोटली, एंड आपको पढ़ने का इतना भी ज़रूरत नहीं है अभी। मैकमिलन बुक अगर पढ़ लिए हैं तो ठीक है, पर अभी जितना शॉर्ट नोट्स होता है उसको फॉलो करिए, और जैसे कि अवेलेबल है ऑलरेडी सम शॉर्ट नोट्स, एंड अगर आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ते हुए कुछ भी डाउट होता है आप हमारे एडमिन को पूछ सकते हैं, दे विल क्लैरिफाई योर डाउट एट दैट मोमेंट ओनली। सो आपको ये वाला हेल्प हो सकता है, एंड 1 वीक इज़ मोर देन इनफ। जैसे कि आपका अभी 3-4 दिन बचा है फॉर द फर्स्ट पेपर, एंड उसके बाद 1 वीक के बाद आपका दोनों पेपर हो जाएगा। सो बहुत कम टाइम है इसमें। हमारा एडमिन्स जो कि ऑलरेडी JIB CIB सर्टिफाइड है, सो वो आपको, एंड मेन थिंग इज दे आर acquainted with the latest pattern and their approach is somehow different, so they can help you. सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन रेजिडेंट्स हु एंटर इनटू एनी ऑफ द प्रेस्क्राइब ट्रांजेक्शन आर रिक्वायर्ड टू फर्निश। जो हमारा नॉन रेजिडेंट होता है ऑफ इंडिया, सो कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनको क्या सबमिट करना पड़ेगा? तो जैसे कि वो इंडिया में आए हैं तो कुछ करते हैं, तो उनको मेन पॉइंट है जो फॉर्म 60 है, फॉर्म 60 हम क्यों करते हैं? जिसके पास पैन अभी नहीं है तो उसके बदले में हम फॉर्म 60 लेते हैं। काफ़ी भी जो भी हमारा जो इंडियंस होते हैं कोई डॉक्यूमेंट रहे उनको, या फिर कोई नॉन रेजिडेंट है उसके पास क्या डॉक्यूमेंट रहेगा? कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑब्वियसली। अगर कोई अकाउंट ओपनिंग के लिए आता है उसके हम क्या लेंगे? जो कभी पासपोर्ट तो कंपलसरी रहता है, उसके बाद कुछ KYC, राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, एंड जो हमारा फॉरेनर्स एंड नॉन रेसिडेंट के लिए अकाउंट रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पस। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि बहुत ईजी है क्वेश्चंस। अभी बैंकर आप बन गए हैं मतलब ये तो बहुत ईजी है, राइट। बस यू नीड टू एनालाइज एंड अप्रोच। पार्टनर्स इक्विटी इज अफेक्टेड, जो पार्टनर्स का इक्विटी वो अफेक्टेड होगा ड्यू टू, कब होगा, जो रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट्स, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कोई आपका न्यू पार्टनर आता है उस केस में भी जो इक्विटी होता है वो भी अफेक्टेड होगा, कोई डेथ हो गया, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये नहीं है इतने तक, ऑप्शन 1 2 3 एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। सो डेथ हो गया मीन्स वही कम्प्लीटली एंड ऑफ दैट पार्टनर। सो इन तीनों का मीनिंग तो एक ही है, कोई न्यू आ रहा है तो जैसे 3 के साथ प्लस हो गया, तीनों को तीनों भाग हो रहा था, 4 आ गया मीन्स डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। सो ये जो इक्विटी होता है तो बाई डिफ़ॉल्ट ही अफेक्ट होता है, कोई एक कम हो जाए 3 से, अगर जैसे ये देखिए पकड़ लिए आपका टोटल 12 था, 3 पार्टनर थे तो आपका 4 आ रहा था, अगर कोई ज़्यादा हो जाएगा तो ये अफेक्ट नहीं होगा, देखिए कितना होगा 4 3 हो जाएगा, 4 भाग में डिवाइड होगा। अगर कोई कम हो जाएगा 3 से, एक कुछ हो गया, रिटायर हो गया या उनका डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में 2 पार्टनर हो गए तो उस केस में भी अफेक्ट होगा। सो लाइक दिस यू कैन रिलेट द थिंग, राइट। So a proposal may be revoked, ये वाला क्वेश्चन से a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance, before the rejection of the communication। देखिए a proposal may be revoked, अगर जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, मतलब वो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि क्या करेंगे, हाँ या ना, तो उससे पहले ही, कोई डिसीजन लेने से पहले ही हमें इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई रिजेक्ट कर दे बिफोर द रिजेक्शन ऑफ द इट्स कम्युनिकेशन, सो रिजेक्शन करने से पहले नहीं, हमें बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द अफेयर्स एक्सेप्टेंस ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, राइट। सो यू कैन इजीली आंसर लाइक दिस। सो यही आपका एक हेल्प रहेगा ये हमारा ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, राइट। So like this you can attempt more and more quizzes in our special group, and here also you will get some more things like special guidance. Whatever doubts you can ask our admins, right, and whatever the conceptual doubts you can also clarify from our admins with the personal talk, right. So it's the thing which is utilized by the admins, and one more thing, here we have added some nominal amount which is paid to them who are because the admins are giving the questions, and there are some who are typing all the questions and who are making, so for them we need to pay them. So you can join this course, and one more thing, the JIB, to pass the JIB exam, and all our admins, they have already cleared the JIB as well as CIB exams in their first attempts itself, so they are well experienced as well as they are also working professionals, and they have the main important thing, they have the experience of the latest pattern. And as we know, for the JIB, to pass the JIB, as we have very less period of time, that is 1 week for the first PPB, then simultaneously then accounting, and next one is legal, and accounting legal are Saturday and Sunday, they're consecutively. So this time ये जो है ना आपका लीगल के लिए पकड़ लीजिए, लीगल एंड अकाउंटिंग, इसके बीच में आपका बहुत ज़्यादा कम टाइम है। अगर जो अभी प्रिपेयर नहीं किए हैं कम्प्लीटली, क्योंकि बैंकर के हिसाब से तो काम रहता है, हम सोचते टाइम निकल जाता है, तो उनके पास टाइम ही नहीं है। आपके पास एक वीक बचा है जिसमें आपको जो अभी भी प्रिपरेशन नहीं किए उनको डरने का कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस अप्रोच डालना होगा, कौन सा टॉपिक चूज करना होगा, एंड आपको पूरा होल सिलेबस को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो कुछ फोकस करने से आपका जो परसेंटेज ऑफ पास है वो विल बी एटलीस्ट मोर दैन 50% और 60%, ऐसे भी आपको चाहिए बस 50% मैक्सिमम। दिस इज आपको तो 40, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड सब पेपर को आप एक ही साथ क्लियर कर रहे हैं
तो आपको 45 करके आप रेज करके टोटल 150। सो आप 50-50 पकड़ के जाइए। अगर आप इतना कर रख लेते हैं आप इजीली कवर कर लेंगे। सो ये एक अच्छा वाला अपॉर्चुनिटी है। यू कैन interact with your RMs at any time. So we'll also provide some more discussion videos and the strategy how to deal with all those things. So till that point, thanks for watching the videos and keep away. All the best for your exams. Thank you.